All things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Amen. Jesus is here in our midst. Hallelujah. Amen. We thank God. We praise God in this morning, in this beautiful morning. Once again, we wake up to praise the Lord. Hallelujah. Amen. We praise everybody in His name, and we say, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, my title today, amen. The title today is actually, I want to say, the Spirit of God leads us. Hallelujah. Amen. And we should follow His Spirit. Amen. So, मैं कहना चाहता हूँ कि इस धरती पर Amen, हम वचन लेंगे और वचन लेने के बाद हम शुरू करेंगे. Amen. See, the वचन हम चाहेंगे कि जॉन हम पढ़ेंगे. पहले हम ड्यूटरोनॉमी पढ़ेंगे. Amen. 22:5. Deuteronomy 22:5. Deuteronomy नंबर्स के बाद, गिनती के बाद ड्यूटरोनॉमी आता है. हाँ, व्यवस्था विवरण. करेक्ट. हाँ, 22 और वर्स 5. If you sorry, not 5 but 8. And when thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy root, but that bringeth not blood upon thy house, if any man fall from thence. Hallelujah. Amen. And thou shalt not sow thy vineyard with diverse seed, lest the fruit of thy seed which thou hast sown and the fruit of the vineyard be defiled. Amen. उसी के बाद हम पढ़ेंगे जॉन Amen. First, sorry, not John, but we'll take Matthew and we'll read the chapter 6 from 27 to 34. Matthew chapter 6, verse 27 to 34. Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature?
And why take ye thought for thy raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God say, clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe ye? Amen. क्या वो आपको वैसे कपड़े नहीं देगा, पहनाएगा? ओ ye of little faith. कहता है कि एक कमज़ोर विश्वास वही विश्वासी हो. Amen. Therefore, take no thought. और ये ना सोचे and कि मैं क्या खाऊंगा, what shall we eat and what shall we drink, or wherewith shall we be clothed. आप ये मत सोचो कि आप क्या खाओगे और आप क्या पियोगे और क्या पहनोगे, क्योंकि for after all these things do the Gentiles seek. Amen. ये सारे चीज़ों कौन देखते हैं? और अन्य जाति लोग देखते हैं. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. क्या परमेश्वर जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है? बट कहता है 33 में, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. क्योंकि पहले आप स्वर्ग के राज्य को खोजो और उसके धार्मिकता और सारे चीज आपसे जुड़ा जाएगा. Take therefore no thought for tomorrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. कल के बारे में मत सोचना, क्योंकि कल वो अपने बारे में खुद ही जाने जाओगे कि amen. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amen. इसलिए कभी भी आप कल के बारे में ना सोचना, क्योंकि कल जो है वो प्रभु आपके लिए सोचता है. हालेलुया. प्रभु आपके बारे में जानता है. प्रभु हर चीज़ आपके बारे में जानता है और वो आपके बारे में सोचता है. हालेलुया. उसी तरह बाद में हम पढ़ेंगे जॉन, पर अब हम जो वचन हमने पढ़ा, हम प्रार्थना करें कि प्रभु उसके इस वचन के ऊपर हमें आशीष दे. आमीन. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर. स्तुति और बड़ाई करते प्रभु जी. हम जानते कि प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी आपने प्रभु जी आप हमारे बीच में उपस्थित हो, और प्रभु जी हम चाहेंगे कि प्रभु जी हम जो है प्रभु जी ना हम बातें करें परमेश्वर, लेकिन आप हमारे अंदर से हो के बातें करें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते कि ये समय आपका है, ये दिन भी आपका है, और ये प्रभु जी सारे संसार आपका है, और प्रभु जी हम भी आपके परमेश्वर. और हम चाहेंगे कि प्रभु जी जैसे हम चले प्रभु जी, आप जैसे हमें दिखाते वैसे हम चले प्रभु जी. हम चिंता ना करें कि हम क्या खाएं, हम चिंता ना करें क्या हम पहने, और हम चिंता ना करें कि कल का क्या होगा, क्योंकि हम जानते प्रभु जी जो भी होगा प्रभु जी आपके अनुसार होगा. और प्रभु जी जब हम सारी स्थितियों को अब प्रभु जी आपके ऊपर छोड़ते, हमारे खुद को अपने पास छोड़ते परमेश्वर, तो प्रभु जी हम जानते कि हमारी आशीष को प्रभु जी आप हमें दे देते. हमारे समय के हर ज़रूरत को प्रभु जी आप पूरा करते प्रभु जी. ये प्रभु जी हमने वचन जो भी पढ़ा प्रभु जी हम चाहते आपके आशीष इस वचन के ऊपर रहे, और प्रभु जी आप हमें बढ़ाइए. और धन्यवाद के साथ हम सारी प्रार्थना विनती को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आप सब लोग बैठ सकते हैं. और हम नबी कहता है एंटाइसिंग स्पिरिट्स में, give me a preacher, give me a Christian, give me a housewife that's a Christian, give me a farmer or a factory worker that will put God first in everything. Hallelujah. Amen. And I will show you a man will be successful in the spite of all the devil can put on him. Hallelujah. Amen. नबी कहता है ये. हालेलुया. बोलता है कि मुझे एक ऐसे प्रचारक दे, मुझे एक ऐसा क्रिश्चियन दे, मुझे एक ऐसी हाउस वाइफ को दे, और मुझे एक ऐसे मैंने क्रिश्चियन आदमी दे. गिव मी अ फार्मर, ऐसा मुझे फार्मर दे, और अ फैक्ट्री वर्कर जो अपने आप परमेश्वर को आगे करता है और वो अपने आप को पीछे रहता है. हालेलुया. एंड मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे वो सक्सेसफुल होता है. हालेलुया. इंस्पाइट जितना भी शैतान आपके ऊपर जितनी भी तकलीफ़ें लाए, जितनी भी परेशानी लाए, कितनी भी आपको परेशानी हो, हालेलुया, वो सारी परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर हो. लेकिन आपको पहली जगह परमेश्वर को देना होगा.
जब तक आप परमेश्वर को पहली जगह नहीं देते हो, हालेलुया, आप अपनी चिंता कर रहे हैं, आप अपनी चिंता में रहोगे। अगर आप कोई भी चीज़ की चिंता करते हो जो चिंता है ही नहीं, लेकिन आप उस चीज़ की चिंता करते हो, हालेलुया, फिर वो चिंता आपको क्या तकलीफ देती है। लेकिन जब आप अपनी चिंताएं सारे परमेश्वर के पास रखते हो और सारी ज़रूरत की चीज़ों को प्रभु जी से मांगते हो कि मेरा चिंता करने वाला परमेश्वर आप है, हालेलुया, मेरा सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर आप हो। और हम चाहते कि प्रभु जी आज इस सुबह में परमेश्वर आप हमसे बातें करें। हम जानते कि हमारा समय के लिए सब नबी को भेजा और वो नबी ने हमसे और सारे बातों को बताया जो हमें करना है। और नबी कहता है इन एंटाइसिंग स्पिरिट में कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी चिंता खुद अपने पास रखते और उस चिंता में डूबे हुए रहते और उस चिंता से परेशान होता है। लेकिन नबी क्या कहता है, पुट गॉड फर्स्ट, हालेलुया, आमीन, अपना परमेश्वर को पहले स्थान दो, हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते और सारी बातें हम प्रभु यीशु को बताते, हालेलुया, तो वो हमारी बातों को सुनता है, हालेलुया। फिर वो कहता है कि तुम्हारी चिंता है मेरी चिंता है, तुम्हारा तकलीफ मेरा तकलीफ है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, हालेलुया। अब हमारी परेशानी उसकी हो जाती है, हालेलुया, हमारी चिंता उसकी हो जाती है, हालेलुया। लेकिन जब हम कुछ चिंता करते रहते हैं, परेशान, वो थॉट्स क्या करता है, वो थॉट्स हमें तकलीफ देने शुरू करता है ना, वो तकलीफ देने शुरू करता है और हम वरीड पर्सन हो जाते हैं। और वो वरी क्या होता है, हमें पूरा हमारे शरीर को, हमारे मन को, सारे चीज़ को तकलीफ देते रहता है। और हम सोचते कि हालेलुया, क्योंकि लेकिन जब हम जानते कि हम पास सारे, अगर सपोजिंग एक बुरा व्यक्ति आपके घर में कोई आपको अपना बच्चे को छुटकारा देना है और आप चिंता कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों परमेश्वर को सामने रखना है और बोलना है आज के बाद ये परेशानी प्रभु यीशु आपकी, मेरा काम है आपको सेवा करना, मेरा काम है आपसे प्यार करना, मेरा काम है आपसे प्रार्थना करना, मेरा काम है मेरा सब कुछ आपके सामने रखना, हालेलुया। और वो हम जानते कि हम इस धरती के जज को जैसे देखते हैं वैसे हमारा जज हमारा परमेश्वर है। और हमारा जज जब परमेश्वर होता है क्या है, हम जानते कि वो न्याय सही करता है, हालेलुया। हो सकता है इस दुनिया का जज सही न्याय नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत सारे उसको पास दलील पेश करना पड़ता है और जितने भी उसके पास उतना ही ज्ञान है कि वो उसके जो लिखा हुआ है और जो पढ़ा गया है वकील ने जो दलील रखता है वो दलील के अनुसार वो उसको जो विटनेस चाहिए रहता है। और वो जो विटनेस बहुत सारे बार हम देखते हैं कि फॉल्स विटनेसेस रहते हैं और जज को बहुत मुश्किल पड़ता है कि जज देंगे, तो उसको वो आदमी के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम देखते कि हमारी सारी परेशानी हम परमेश्वर के पास रखता क्या है, तो परमेश्वर एक सही जज है हमारा, हालेलुया। वो क्या करता है, वो सारी हमारे बातों के अनुसार वो हम पर जज करता है, हालेलुया। तो अगर हम जानते कि हम आपसे अपने बच्चों से प्यार करता है तो क्या करता है, प्रभु उनको वो उद्धार देता है, हालेलुया। किसके वजह से, हमारी प्रार्थना की वजह से, हमारा विश्वास की वजह से, जब हम पहले जगह प्रभु को रखते हैं, हालेलुया। लेकिन अगर हम पहली जगह प्रभु को नहीं देते और बस हम चिंता करते रहते दिन रात कि प्रभु क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे, तो क्या करता है कि आप डगमग जाते हो, है ना, आप डगमग जाते हो, तो आपको नहीं पता क्या करना है, वो आप सोचते हो। लेकिन अगर आप जीवन में खुशी चाहते हो, हमेशा खुशी रहो और बस करो, बोला मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर मेरी जितनी भी चिंता है मैं आपके पास रखता हूँ या मैं आपके पास रखती हूँ। तो क्या होता है, परमेश्वर के पास ब्रदर ब्रनम बोलता है गॉड इज़ अंडर एन ओथ, यू नो, एक शपथ के नीचे, क्योंकि उसने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, हालेलुया, आमीन। तो सी क्या है, परमेश्वर जो है हमारा, यू नो, वो कभी भी हमको चूक नहीं सकते हैं, वो हम चूकते पर वो हमको कभी चूकता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो सारे चीज़ को पहले से जानता है, हमारी ज़रूरत को, हमारे सारे तकलीफ़ों को, और वो सारे चीज़ों को जानता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ दो आत्माएं रहते हैं। एक आत्मा जो है, आमीन, जो है वो
किसका आत्मा है? एक पवित्र आत्मा है, और एक दूसरा जो आत्मा रहता है वो ईविल आत्मा रहता है, जो ह्यूमन स्पिरिट होता है। जो एक जो आत्मा होता है वो है प्रभु की आत्मा, और एक जो होता है वो ह्यूमन स्पिरिट, जो ह्यूमन के हिसाब से चलता है, जो इंसान के अनुसार चलता है। और जब इंसान अपने अनुसार चलता तो क्या होता है? वो भटक जाता है ना, वो भटक जाता है। वो कोई भी अगर उसको बोलेगा चलो आओ आज मूवी को देखने जाओ, तो वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट, ह्यूमन स्पिरिट ह्यूमन को कैप्चर करता है, और वो ह्यूमन का जो स्पिरिट होता है उसको ईविल भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है और वो इंसान के अंदर रहता है तो क्या होता है? वो स्थिर रहता है, वो डरता नहीं, वो बोलता नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं जो भी करूँगा प्रभु के अनुसार करूँगा, जो भी मैं करूँगा वो प्रभु में मुझे विजय पाना है, और मुझे प्रभु के अंदर मुक्ति पाना है। आमेन। सी एंड जॉन एजिकल 36:26 वर्स में कहता है, आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, मैं आपको एक नया हृदय दूंगा, एंड आई विल पुट अ न्यू स्पिरिट विद इन यू। दिस इज अ प्रॉमिस, a new regenerated human spirit which God enables by putting his own spirit into believers. Hallelujah. Amen. See, I will give you a new heart and I will put a new spirit within you. Amen. तो ये नया आत्मा हमें वो देता है। हालेलुया। हम देखेंगे कि पुराने करार में हम जब देखते हैं तो क्या होता है? हम वहाँ क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं था, बट परमेश्वर लोगों के साथ था। अगर वो अब्राहम के साथ था तो अब्राहम के बच्चों के साथ था, और हम देखते कि हर एक समय में, हर एक घड़ी में हम देखते थे परमेश्वर लोगों के साथ था। लेकिन जो प्रभु से दूर थे वो कभी भी प्रभु का आत्मा को नहीं पा सकते थे। तो हम देखते हैं कि लोगों के लिए उद्धार का समय था, एक अटोनमेंट की ज़रूरत थी, और वो अटोनमेंट यानी कि क्या था कि जितने भी लोग पाप करते हैं उसके लिए कोई अटोनमेंट, यानी उसको कोई किसी को चुकाना है, किसी को भरपाई देना है। और अगर किसी को भरपाई देना था तो कौन भरपाई दे सकते थे? क्योंकि जो बाइबल कहता है कि जो लहू जो बहा जाता था मेमने का, और वो ज़रूर, और वो जो कबूतर था, जो भी वहाँ पे लोग वेट करते थे, वो क्या करता था? वो 100% आपको अटोनमेंट नहीं देता था। तो एक शुद्ध पवित्र इंसान जो प्रभु ने क्रिएट किया वो यीशु मसीह था, और वो चाहता था कि बोलता मैं ओनली बिगॉटन सन। आमेन। तो उसका एक ह्यूमन सैक्रिफाइस की ज़रूरत थी ताकि वो अटोनमेंट हमको मिल सके। और जब हम देखते कि जिस दिन वो अटोनमेंट मिला, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हालेलुया जब वो जीवित हुआ तो उसने अपने लोगों को क्या कहा कि अब मैं जाऊंगा और तुमको क्या करूंगा? पवित्र आत्मा भेजूंगा। इट वॉज अ प्रॉमिस टू दिस न्यू जनरेशन, टू दिस न्यू टेस्टामेंट पीपल, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, कि मैं तुमको आत्मा भेजूंगा। ये क्यों आत्मा भेजना ज़रूरी था? क्योंकि जो हम चलते हैं अपनी खुद की आत्मा से, वो हम बहुत बार गलती करते हैं ना, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम क्या होते हैं? स्ट्रांग बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें स्थिर रखता है। हालेलुया। जब हमारे मन में कोई भी ऐसे थॉट आए या सोच आए, विचार आए, वो हमारे साथ क्लैश, वो इधर से आके टक्कर होके चला जाता। क्यों? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या होएगा? वो जो थॉट है वो आपके अंदर एंट्री कर सकता है, और जब वो थॉट हमारे अंदर एंट्री करता है तो हम क्या करते? उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। फिर हम जो भी ईविल जो हमको बताता है वो हम ईविल करते हैं। लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा हमें कैप्चर करता है, इस शरीर को, पूरा शरीर को कैप्चर करता है, और यहाँ पे वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसता है, और हमारे मन को कभी भी कोई भी बाहर से अगर कोई भी ऐसे थॉट आए तो क्या करता है? वो थॉट को आने नहीं देता। अगर थॉट आता है तो भी हम कहता है कि हमारा प्रभु हमको जो भी है, हमारा प्रभु है हमारा देखने वाला। आमेन। क्या हम प्रभु है, हमारा प्रभु है, हम प्रभु में मगन है, हम प्रभु में स्ट्रांग है, और मैं मेरा जॉय कभी नहीं खोऊंगा, मैं कभी भी मेरा खुशियाँ खोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप आ रहे हुए हैं
आप हारे हुए थे और आप हारे हुए रहेंगे। आमेन। तो सी इन जॉन 3:6 क्या कहता है? For that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Amen. Hallelujah. जो शरीर से पैदा हुआ है वो क्या होगा? शरीर में ही रह जाएगा, और जो आत्मा से बना हुआ है और वो आत्मा का ही बना रहेगा। Amen. ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वचन कहता है कि अगर आत्मिक लोग हैं और आपने आत्मा से जन्म लिया है तो क्या होगा? आप आत्मिक ही रहोगे। आमेन। और आपको आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा चलाएगा। आपको कोई दूसरा दुश्मन आपको या आपके इधर एंट्री भी कर नहीं पाएगा। क्या एंट्री कब कर पाता है वो? जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं ना, जब हम प्रभु से दूर होते कोई कारण के वजह से, और हम जो भी करते हैं ना, हम जब दूर होते हैं तो क्या होता है? तो शैतान हमें आके बरमा सकता है। वो समय में जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो ज़रूरी क्या है हमें कि हम प्रभु के साथ एक बने रहे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता कि आई डाई डेली। वाई? बिकॉज वो रोज़ प्रार्थना करता, क्योंकि उसके शरीर की कमज़ोर या मन की कमज़ोरी हम सबको रहता है। ऐसा नहीं कि हम बोल सकते कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है, अब आने दो शैतान, कुछ भी करने दो। ऐसा नहीं है। हम प्रार्थना जब करते हैं तब हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और ये जो आत्मा से चलते हैं क्या होता है? हम आत्मा में बढ़ते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम आत्मा में बढ़ते रहे। लेकिन क्या होता है हम लोग हम दूर चला जाते, और जब हम दूर चला जाते कि हमें फिर ऐसे आत्माएं आते जो हमें परेशान करते, फिर हमें डाउट्स भी आता है, बहुत कुछ चीज़ें आता है। See here the divine spirit, the Holy Spirit of God, and the second spirit is human spirit, the regenerated spirit of man. Regeneration is accomplished by the Holy Spirit of God, which is God's life. See, and जो इटर्नल है वो उस चीज़ से हटेगा नहीं, क्योंकि वो अनंतकालिक है। और जो अनंतकाल का लोग जो विश्वास करते हैं वो अनंतकालिक लोग हैं, वो उस चीज़ में जाएगा ही नहीं। वो कोशिश करेगा कि मेरे प्रभु ने मुझे इस सारी चीज़ों से मना किया है। जैसे आदम को मना किया था कि द ट्री ऑफ गुड एंड लाइफ, ये शुरुआत से था, अच्छाई और बुराई जानना। और हवा की वजह से, उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से क्या हुआ? ईविल उन दोनों के ऊपर आ गया, क्योंकि आपने अविश्वास किया प्रभु के वचन को। प्रभु ने बोला था कि उस चीज़ को ना करना जो मैंने यहाँ पे इस पेड़ को लगाया, जो क्या है, जो ईविल और गुड दोनों जानते हैं। लेकिन उसके पहले क्या था? आदम और हव्वा सिर्फ गुड जानते थे। वो लोग सिर्फ अच्छाई जानते थे, और वो अच्छाई इसलिए इतना जानते थे अच्छाई कि उन्होंने अपने आप को नंगा भी नहीं समझा, क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये गलत शरीर है या ये गलत भाग है हमारा, या ऐसा कुछ भी नहीं लगा उनको, क्योंकि वो लोग प्योर पवित्र थे उस गार्डन ऑफ ईडन में। उन लोग घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। ना आदम अगर हवा को देखता तो उसको गलत सोच में आता था, ना हवा आदम को देखता तो उसको गलत सोच आता था। क्यों? बिकॉज दे वर प्योर हार्टेड। और प्रभु का योजना यही था कि इंसान प्योर हार्टेड रहे। आमीन। बट क्या हुआ? पाप जब आया तो वो पाप क्या हो गया? इस शरीर में सबका चला गया, और वो जो पाप हवा ने किया, और वो क्या हुआ? वो सारे शरीर में आ गया। और इसके लिए हम अभी वो जो स्पिरिट जो प्रभु ने आदम को दिया था, वो प्योर स्पिरिट था, वो प्योर काइंड ऑफ स्पिरिट था कि आदम उसके अलावा, अच्छा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था। उसके अंदर जो स्पिरिट था वो प्योर गॉड स्पिरिट था। आमीन। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम जब भी सोचे, अच्छा सोचे, प्योर हार्टेड सोचे। आमीन। क्योंकि जब हम प्योर रहते हैं तो क्या होता? गॉड हमें हर चीज़ को ग्रांट करता है। आमीन। आप कोशिश करके देखो, अगर आपको जानना है अगर कि प्रभु मुझे कोई चीज़ देता नहीं तो क्यों नहीं देता? क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, सारा बाइबल, सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि परमेश्वर देता है। हालेलुया। आमीन।
वो देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में अगर कोई चीज़ नहीं दिया है तो आप प्रभु को अगर जानना चाहते हो तो कुछ समय के लिए प्रभु प्योर हार्टेड बनो, प्रभु से मांगो और दिन रात कब आप प्रभु से पूछो कि प्रभु मेरा मैंने जो भी विनतियाँ रखी आपके सामने ये मुझे ज़रूरत है। और देखना ब्रदर बनाम बोलता अगर वो देता है क्या नहीं देता। अगर वो नहीं दिया तो वो परमेश्वर नहीं, आप उसके ऊपर विश्वास ही मत करो क्योंकि वो परमेश्वर नहीं। लेकिन ब्रदर बनाम खुद बोलता है कि इज अंडर एन ओथ एंड इज ड्यूटी बाउंड। जब उसने हमसे शपथ लेके बोला कि जो तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो या तो हम लोग सिर्फ गाना गाने के लिए गाते, मांगो दिया जाएगा, आमीन। डैनियल की प्रार्थना सुनी, एलिया की प्रार्थना सुनी, क्या होता है ये सिर्फ गाना गाने में रहता है। लेकिन आप हकीकत को परमेश्वर को जानना चाहते हो तो आप प्रार्थना करो, इस तरह प्रार्थना करो जैसे डैनियल ने प्रार्थना की, वैसे प्रार्थना करो जैसे एलिया ने प्रार्थना की, और आपको प्रभु जरूर देगा। अगर नहीं दिया, ब्रदर ब्रैनम कहता है कि he is not God. If he is a God, he has to honor his word, and he will honor God. God will honor his word when you are sincere. Hallelujah. When you are sincere, he is duty bound to give you. Hallelujah. अगर वो नहीं दिया तो वो परमेश्वर नहीं है। Hallelujah. और अगर वो परमेश्वर है तो he is duty bound. He has to give you what you ask. Amen. Amen. इधर स्क्रिप्चर में बता, ask and you shall receive, seek and you shall find, and knock it shall be given unto thee. Amen. These 3 words are enough. ये जो बोला गया शब्द इतना ही काफ़ी है। ये यीशु के वर्ड्स थे और वो वहाँ पे आमेन उन्होंने कहा। हालेलुया। आमेन। तो ये 3 शब्द काफ़ी है ना। आपका विश्वास क्यों डगमगाता है? क्योंकि आप प्रभु से दूर हो। और अगर आप सोचते हो क्यों नहीं दे रहा है तो आप मांग के ले लो। आप अगर मांगोगे और आप बोलेंगे नहीं मैंने मांगा, मैं तो दिन रात मांगता हूँ, मैं तो 1 साल से मांग रहा हूँ, मैं तो 2 साल से मांग रहा हूँ, तो प्रभु में कोट नहीं है। ये कोट हमारे अंदर है। हमको पूछना चाहिए कि हमने मांगा और प्रभु ने क्यों नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो कोई रीज़न होगा। हालेलुया। और वो रीज़न हम खुद है। अगर मैंने कोई चीज़ मांगा और प्रभु मुझे नहीं देता है तो कोट प्रभु में नहीं, वो कोट मेरे अंदर है, क्योंकि मैंने उस तरह नहीं मांगा जैसे डैनियल ने प्रार्थना किया था और जैसे एलिया ने प्रार्थना किया था। अगर हम वैसे ही प्रार्थना करें जैसा एलिया ने किया था और जैसे डैनियल ने किया था तो वो प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। हालेलुया। आमीन। अगर नहीं दिया तो वो परमेश्वर नहीं है। आमीन। ये कितना बोल्ड स्टेटमेंट है। और ब्रदर ब्रैनम ने ये बोल्ड स्टेटमेंट को बोला कि कोई बोल सकता है कि प्रभु को कि वो नहीं दिया तो मतलब वो परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो एक प्रभु के साथ जो क्लोज व्यक्ति वही बोल सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु को जाना है, उसके जीवन में वो कार्य उसने देखा, वो जीवन ही वॉज अ विंडिकेटेड प्रॉफिट। और वो विंडिकेशन प्रभु ने दिया जब वो सिंसियर था, वो इसलिए जब वो मांगता था वो दिया जाता था। ब्रदर ब्रैनम ने एक और स्टेटमेंट बोला है कि इफ़ यू आर सिंसियर even cancer cannot stand before thee. Amen. और उस समय में और ये समय में हम जानते हैं कैंसर सबसे बड़ा बीमारी माना जाता है। हालेलुया। कैंसर से बचना बोलेगा तो वो बहुत ही मुश्किल है। आमीन। कोई दवाई नहीं बनी है उसके लिए, ना कोई ऐसी कोई चीज़ किया है। अगर दवाई बनी है तो भी वो इतना भयानक दवाई है कि आपको आधा हिला देता है। जब एक आप सिस्टर तो जानती होगी क्योंकि वहाँ पे आप तो नर्स ही है। और कैंसर पेशेंट कैसे होते हैं मैन, और हम जानते हैं कि केमोथेरेपी क्या करता है, वो पूरा शरीर को हिला जाता है, हमारा सारे सेल्स को मार देता है। जो अंदर का सेल्स है वो सारे अच्छे और बुरे सब सेल्स को मार देता है और हमारा शरीर आधा कमज़ोर वही कर देता है। तो इसलिए हम जानते कि अगर कैंसर, ब्रदर ब्रैनम बोलता है इवन कैंसर can't stand before thee, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। बिकॉज हम सिंसियर नहीं है इसलिए प्रभु नहीं देता है। आप जिस दिन सिंसियर बनोगे, अब हम सिंसियर बनेंगे तो क्या होएगा, प्रभु देगा। आमीन। सी एंड John 3:6 says which is born of the spirit is the spirit,
it is the evident that in this verse, amen, see that there are two spirits. The first spirit is capitalized, referring to as the divine spirit, and the second spirit as the small, which is referred to as human spirit. So there are two spirits in this world. There cannot be three spirits or four spirits. One spirit is of God, and the second is human spirit, which can be evil also. Because human spirit is always, contradicting himself, आप कभी भी देखो मनुष्य को, he is always full of doubts. अरे ऐसा होगा क्या नहीं होगा, क्या ये ऐसा है क्या नहीं, कि ये ऐसे चीज़ है, तो वो डाउटफुल ही रहता है. इंसान का माइंड ऑलवेज डाउटफुल रहता है. मैन, इसके लिए पवित्र आत्मा दिया है. मैन, ताकि वो आपका सारे डाउट्स को निकाले, ताकि आपके सारे चिंताएं को दूर करे, ताकि आपको वो आत्मा दे. हालेलुया. जो प्रभु की आत्मा थी, जो आदम के पास, वो पहले आदम था. आमीन. क्योंकि आप अपने आंखों से अगर गलत भी देखोगे तो आपको गलत नहीं दिखाई देगा. क्यों? आपके अंदर गॉड स्पिरिट है. एंड गॉड स्पिरिट वाज गिवन टू एडम. इफ यू सी एंड एवरीवेयर, फॉर क्वाइट सम टाइम एडम हैड दैट स्पिरिट ऑफ गॉड. एंड ही वाज, इफ यू वुड से एनीथिंग, अगर वो बोलता था कि ये पेड़ वहाँ से तो हट जाए, यहाँ पे तो सही नहीं है, तुम यहाँ पे तकलीफ दे रहा है, तो वो जाके जाट दूसरी जगह चला जाता था. और इसके पास अथॉरिटी था. हालेलुया. आमीन. क्योंकि उसके अंदर वो गॉड का स्पिरिट था. आमीन. इसके पास पूरा अथॉरिटी था. अगर वो बोले कि ये जानवर तो यहाँ आ जा, तो जानवर भी उसकी बातें सुनते थे. दैट इज गॉड्स अथॉरिटी. And the same authority God has come in these days to give to His bride. Amen. Brother Branham बोलता है, the bride is the final voice to this generation. आप अपने आप को अगर देखो, बोलता है अगर जिसको आप न्याय के अंदर डालोगे, वो न्याय के अंदर रहेगा. और आप जिसको न्याय से निकालना चाहते हो, वो इतना अथॉरिटी आपको दिया हुआ है. लेकिन क्या हुआ है कि दुल्हन अपने आप को वो अथॉरिटी इसलिए नहीं पाती है क्योंकि वो सिंसियर नहीं है. अगर सिंसियर रहोगे तो क्या होगा, आपको वो अथॉरिटी आपके हाथ में है. आप कुछ भी क्लेम करो तो आपको वो आ जाता है. मैन. और हम देखते, और वो स्पिरिट जब ब्रदर ब्रैनम के अंदर था, और उसने जब सिस्टर एटी राइट को वो बोला कि अधिकार यूज़ करो आपका, आज जो मांगना है मांगो, क्योंकि आपने प्रभु को खुश किए. मैन, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम इतना खुश था उस दिन, और वो परमेश्वर उसके अंदर था, क्योंकि उसके अंदर वो क्रिएटिव पावर था. क्रिएटिव पावर किसी को दिया नहीं गया आज तक, है ना. आपको पता है, क्रिएटिव पावर किसी को नहीं दिया है. अथॉरिटी दिया, पावर दिया है, और वो रचने का क्रिएशन दिया ही नहीं किसी को. वो ब्रदर ब्रैनम को यीशु मसीह के बाद वो क्रिएटिव पावर एक बार ब्रदर ब्रैनम है, जिसने वो प्रभु ने उसको बोला, बोलो, स्पीक, और उसने बोला कि स्क्विरल्स आ जाए. हालेलुया. और जो स्क्विरल्स जो ख़त्म हुए थे, वापस वो एग्जिस्ट होने लगे. और ब्रदर ब्रैनम इतना खुश था कि किसी कोई भी, जितने भी उसके विश्वासी भाई थे जो उसके साथ ही घूमते थे, उन्होंने किसी ने विश्वास नहीं किया. उनको लगा कि ब्रदर ब्रैनम अपना कुछ भी बोलता है. लेकिन सिस्टर एटी बोला, आमीन ब्रदर, आई बिलीव यू. इतना खुश हो गया ब्रदर ब्रैनम. वो बोला कि वो क्रिएटिव पावर क्या हुआ, ब्रदर ब्रैनम के पास आया वो क्रिएटिव पावर, और उसने एग्जिस्टिंग में स्क्विरल्स को लाया. जो आदम के पास वो अथॉरिटी था, वो अथॉरिटी किसके पास आया, ब्रदर ब्रैनम के पास आया. कुछ समय के लिए आया, और इतना खुश हो गया ब्रदर ब्रैनम की सिस्टर एटी राइट को बोला, आज आप जो भी मांगोगे तुमको दिया जाए. तो उसने बोला, मेरे दोनों बेटे का उद्धार चाहिए. मैन. तो ब्रदर ब्रैनम ने बोला, वो तुमको दिया जाएगा. आमीन. गॉड विल गिव इट टू यू. व्हाई? बिकॉज उस सिस्टर ब्रदर बोल रहा था कि वो धन दौलत मांग सकती थी, वो बड़ा अपना बंगला मांग सकती थी, वो कार मांग सकती थी, वो बहुत कुछ चीज़ें मांग सकती थी. बट उसके मन में क्या आया, 2 बेटे का उद्धार. क्योंकि उसके लिए वो तरस रही थी काफ़ी समय से कि मेरा दोनों बेटे उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए. और उसके वो मन में ही वो थॉट था, और उसको देने के लिए प्रभु था. शायद वो प्रार्थना करती थी दिन रात, और प्रभु को देना था, लेकिन प्रभु ने उसको वेट कराया. हालेलुया.
उस दिन तक वेट कराया जब तक कि वो ब्रदर ब्रैनम की बातों को वो टैली कर सकते कि आप सही बोल रही है। हालेलुया, आमीन। तो उसी दिन जब ब्रदर ब्रैनम ने बोला अब तुमको वो दिया जाएगा, और दोनों उसके बेटे को उद्धार पाए। आमीन। दोनों बेटे ने उद्धार पाया। उद्धार पाना कितनी बड़ी बात है। आमीन। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि संसारिक चीज़ें जो हम मांगते हैं वो व्यर्थ है। हालेलुया। संसारिक सब चीज़ें पूरी तरह से व्यर्थ है। हम क्या मांगते क्या नहीं करते, आमीन, अब वो सब व्यर्थ है। अगर मैं कल खाने के लिए मांगूँ तो प्रभु बोले तुम्हारा खाना ऑलरेडी है, क्या मांग रहे हो तुम। अगर मैं कोई चीज़ को मांगूँ, मैं बोलेगा मेरे को बड़ा बंगला दो, बोले घर तो ऑलरेडी है रहने के लिए, तुम सोने के लिए है, तुम्हारे पैसे क्यों मांग रहे हो। और इसी बट अगर मैं आज कोई चीज़ मांगूँ जिससे प्रभु के द्वारा मेरा परिवार को लाभ मिले, वो लाभ क्या रहेगा। हालेलुया। वो लाभ, हालेलुया, प्रभु की राज्य के लिए। आमीन। और प्रभु के राज्य के लिए लाभ। हालेलुया। आज लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने हमको ये चीज़ को बताया कि इसका क्या महत्व है। आमीन। बहुत लोग अपना वचन को पाते और ब्रदर ब्रैनम का मैसेजेस बहुत सुनते, बोलते मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छी बात है। बहुत सारे वचन, आप सिर्फ वचन सुनते रहोगे क्या। आमीन। आपके जीवन में कार्य ही होना चाहिए। आपके जीवन में जब कार्य होता है वही आपका लाभ है। आमीन। तो आपकी दुनिया की धन दौलत पाने के लिए लाभ को नहीं मांगते, लेकिन आपको उद्धार मिलना, आपके लिए स्वर्गीय इन अनंत काल के जीवन मिलना, हालेलुया, इस सौभाग्य है। आमीन। ये सौभाग्य है, और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को दिया। आज लोग समझते भी नहीं है कि मैंने बैप्टिज्म एक सिर्फ चिन्ह होता है। मैंने बहुत जगह देखा है, लोग सोचते कि मैंने बैप्टिज्म लिया, अब मैं बस बच गया, मेरा ये रास्ता हो गया, अब मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कैसे भी रहूँ, कुछ भी जीऊँ, क्या करूँ, वो मैं बस प्रार्थना करेगी। मैं कुछ मुँह से भूनू करके प्रार्थना करते लोग, और सोचते कि मेरा हो गया, मैंने प्रार्थना किया। लेकिन आप सच्चे दिल से सोचो, अच्छे मन से सोचो कि आपका लाभ क्या है। ब्रदर ब्रैनम बोलता है इफ़ यू कैन बी बैप्टाइज्ड एंड स्टिल गो इनटू द लेक ऑफ फायर। व्हाई? Because you did it as a sign. That is just a sign. It has nothing. Your baptism has no meaning. Your baptism is just a sign that you have accepted God and you want to renew, you want to become a reborn Christian. You know, आप एक नया जन्म पाने के लिए आप एक रास्ता है वो। आमीन। बट आपको जीना है तो आपको विश्वास, फेथ, प्रार्थना, ये सब ज़रूरी है। आपको प्रभु के साथ चलना ये ज़रूरी है। अगर आप प्रभु के साथ नहीं चलोगे तो आप इस बैप्टिज्म लेके भी आप क्या होगा, आप नरक जा सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नरक जाओगे, आप जा सकते हो। वो चॉइस आपका है कि आपको क्या लेना है। बहुत लोग सोचते कि मैं दिन रात मैं इधर मैसेज जाता हूँ, उधर मैसेज सुनने जाता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, मैसेज सुनना, मैसेज रखना अच्छी बात है, लेकिन आपका पर्सनल फेथ, आपका पर्सनल जो चीज़ जो है आपका, आप ग्रोथ कर रहे हो क्या। और आपका पर्सनल ग्रोथ कब आप जानोगे, जब आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आपके जीवन में कार्य होता है, आप मिरेकल्स देखते हैं, आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है, आपका विश्वास और बढ़ता है कि ये प्रभु ने मेरा ये बीमारी थी वो हटा दी, तो फिर मेरा प्रभु ये भी करेगा। और फिर आपका फेथ बढ़ते जाता है ना, आपका फेथ बढ़ता है। छोटे से फेथ से आपका फेथ और भी बढ़ता है, और आपके पास इतना फेथ होना चाहिए कि आप उठाए जाने वाले हो। अगर आपके पास वो फेथ नहीं है, आप बोलोगे शायद जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हालेलुया, ऐसा नहीं चलेगा। आपका फेथ इनोक के जैसा होना चाहिए कि एक दिन मैं उठाए जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इनोक ने प्रभु को इतना प्रसन्न किया कि वो दिन रात प्रभु के साथ चलता था, और वो चलते चलते क्या हो गया, प्रभु उसके साथ इतना प्रसन्न हो गया, प्रभु ने बोलेगा ये मौत नहीं देखेगा, इसको मैं उठाया ले जाऊंगा।
और आज भी ये हमको विश्वास ब्रदर ब्रैनम ने बोला है कि आप उठाए जाने वाले हो। और अगर आप उठाए जाने वाले तो क्या आपके पास वैसा विश्वास होना चाहिए। आप सिर्फ एक नामधारी क्रिश्चियन हो तो चर्च तो नामधारी क्रिश्चियन भी जाते, वो लोग भी जाते, 1 घंटा बैठते, प्रार्थना करते और सुनते, तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना वो नामधारी क्रिश्चियन में और एक विश्वास जो प्रभु में, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। क्या हम सिर्फ चर्च गोअर्स हैं या हम उस विश्वास के साथ खड़े? अगर हम वो विश्वास के साथ खड़े तो वो विश्वास हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर नहीं करता है, ब्रदर ब्रैनम बोलता है इफ़ यू डोंट हैव फेथ फॉर डिवाइन हीलिंग, तो आप रैप्चर भूल जाइए। आपके पास चंगाई होने के लिए भी विश्वास नहीं है और आप रैप्चर की विश्वास करें। और रैप्चर में विश्वास करने के लिए दिन रात आपको क्या करना है? प्रभु के साथ चलना है। यू हैव टू वॉक गॉड, टॉक गॉड, एवरीथिंग इज गॉड 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 गॉड, आमेन। एवरीथिंग इन यू हैज टू बी गॉड। So when you have that faith, you know what happens? तो आपको ब्रदर ब्रैनम क्लियरली बोला है, आपके पास अगर विश्वास नहीं, एक साधारण डिवाइन हीलिंग बोलेगा तो आपने प्रे किया और आप चंगे हो। आपने प्रे किया और आपका कोई भी चीज़ आमेन जो आप जिससे तकलीफ़ पाते हो वो आपके जीवन में होता है। और अगर आप काली प्रभु को बोलेगा, प्रभु मैंने प्रार्थना किया आप देते नहीं, प्रभु मैंने आप प्रार्थना किया आप देते नहीं, प्रभु मैंने प्रार्थना किया आप देते नहीं है, तो देता है। आपका मांगने का तरीका, आपका वो सारी चीज़ प्रभु के साथ फिट बैठना चाहिए। आप सिर्फ मांगोगे और नहीं जियोगे तो कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? हालेलुया। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम उस चीज़ को मांगे और प्रभु नहीं दे रहा है, हम जी नहीं रहे हैं और हम प्रभु से मांग रहे हैं, क्या प्रभु खाली मांग के देने वाला परमेश्वर है? आमेन नहीं, आमेन। वो चाहता है कि आप प्रभु के वचन के साथ चले। आपको दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के साथ चलना है। आपके जीवन में कार्य होते जाएगा, इतना कार्य होते जाएगा। आप जो बोलोगे आमेन, पड़ोसी भी चंगा होगा और हो सकता है कि आमेन कि आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं। क्या होगा? आप यू हैव बीन हील्ड, आमेन। क्यों? बिकॉज यू हैव प्रेड फॉर इट, आमेन। यू हैव टू बिलीव व्हाट यू प्रेड फॉर, एंड इफ यू डोंट बिलीव व्हाट यू प्रेड फॉर, देन सी, आमेन। we'll read the Proverbs 10 from 17 to 32. आप लोग खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ता हूँ। He is in the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. No? जो प्रभु का जीवन को पाना चाहता है वो क्या करता है? प्रभु का इंस्ट्रक्शन को रखता है। जो प्रभु का इंस्ट्रक्शन को नहीं रखता है वो क्या होता है? He refuses, उसका जो He that hateth with lying lips, जो किसी को नफरत करता है ना, और वो झूठ बोलता है कि मैं नफरत नहीं करता हूँ। He that uttereth a slander is a fool. Amen. See, in the multitude of words there wandereth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Amen. जो अपने, अगर कोई किसी ने तुमको कोई दुख पहुँचाया और आप शांत रहे तो क्या होता है? आपने प्रभु को प्रसन्न किया है। लेकिन आप सोचते कि मैं दांत के बदले उसका दांत लेगा तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वो पुराना करार में ऐसा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई दुख पहुंचाता तो क्या आप उसको रिटर्न में दुख पहुंचाओगे? नहीं, कदापि नहीं। आप क्या करोगे? बोलेंगे गॉड फॉरगिव मी, डजंट नो, परमेश्वर जानता नहीं। लेकिन जब आपके अंदर आप नफरत रखते हो और बाहर से दिखाते हो, नहीं मैं तो नहीं नफरत करता उससे, कहाँ नफरत करता, मैं तो नहीं करता हूँ, तो आप एक झूठे इंसान। और बाइबल बोलता है कि जो लिप्स से आप कहते हो वो अंदर से भी होना चाहिए। हाँ, अगर मैंने किसी को क्षमा किया तो दिल से होना चाहिए, वो मन से होना चाहिए। अगर मैं
किसी के प्रति नफरत रखे तो फ़ायदा क्या है? आप वो भी नफरत रखता है और आप गॉड का स्पिरिट लेके नफरत रखते हो तो क्या फ़ायदा है ना? दुनिया में नफरत करते ही लोग एक दूसरे से, बट वो ह्यूमन नेचर है, वो ह्यूमन स्पिरिट है और वो ह्यूमन नेचर में रहता है। लेकिन यहाँ क्या बाइबल हमको प्रोवर्ब्स में हमको ज्ञान दे रहा है, किसी हम सिर्फ ओंठों से सिर्फ बोलेगा नहीं कि मैंने उसको क्षमा किया, पर अंदर वो बातें रखा आपने, तो फिर वो कैसे क्षमा किया आपने? तो ये जो बातें हैं हम जब आप मांगता तो बाद में प्रोवर्ब्स पढ़ो फ्रॉम 17 to 32। सी he that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth the slander is a fool, वो मूर्ख है। Amen. See, in the multitude of words there wandereth not sin, but he that refraineth lips is wise। जो अपने अपने शब्दों को कंट्रोल रखता है, अपने शब्दों अपनी बातों को कंट्रोल रखता है, क्या है? वो बुद्धिमान है। The tongue of the just is a choice silver, and the art of the wicked is little worth। तो सी जो ज़ुबान है, बोलता है जो ज़ुबान है, जो अपने कंट्रोल करके ज़ुबान जो होता है ना, वो चॉइस सिल्वर जैसा होता है। और द हार्ट ऑफ द विकेड इज़ लिटिल वर्थ, बोलता है कि जो विकेड होता है उसका बाइबल बोलता है उसको कोई वर्थ ही नहीं है, उसका हृदय भी वर्थ नहीं, कुछ भी नहीं। द लिप्स ऑफ द राइचस फीड मैनी, बट द फूल्स डाई फॉर द वांट ऑफ विजडम। मैन सी द लिप्स ऑफ द राइचस क्या होता है? जो धार्मिक है उसके मुंह से जो भी बोले हुए बातें कितना है, वो बोलते सफलता लाती है और जो लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैन सी फीड मैनी मतलब बहुत लोगों को वो जो अच्छे जो शब्द में क्या होता है कि बट द फूल्स डाई इन द वर्ल्ड ऑफ विजडम, और जो बोलता है मुझे ज्ञान चाहिए। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इज मेकeth रिच, एंड ही दैट नो सॉरो विद इट, उसके जो प्रभु का आशीष है ना, क्या होता है? वो बहुत ही कुछ उसके जीवन में सॉरो नहीं होता है, उसके जीवन में क्या होता है? दुख नहीं होता है। मैन सी ये है प्रभु का ब्लेसिंग। एंड इट इज एज अ स्पोर्ट टू अ फूल टू डू मिस्चिफ, बट अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट विजडम। और जो इंसान अपना समझ, जो प्रभु की समझ, वो अपनी समझ को लेता है, क्या बोलता है कि उसके पास वो ज्ञान है। हालेलुया। जब आपको प्रभु बताता है ये चीज़ मत करो तो आप नहीं करते, तो आप समझदार होते हैं। लेकिन आपको वो चीज़ कोई बदला लेना है और या कोई चीज़ को करना है जो आपके मन में है, वो क्या होगा? आप एक मूर्ख जैसा। द फियर ऑफ द विकेड shall come upon him, but the desire of the righteous shall be granted। Amen। और जो बोलता जो फियर ऑफ द विकेड है, मतलब जो एक विकेड है और उसका डर है, वो क्या करेगा? बोलता है वो उसके ऊपर आ जाएगा। बट द डिज़ायर ऑफ द राइचियसनेस शैल बी ग्रांटेड। अगर तुम्हारे हृदय में कुछ आप सोच रही अच्छा चीज़, वो चीज़ 100% आपको दिया जाएगा। बस आपका सिर्फ एक डिज़ायर, आपकी चाहत, हालेलुया, प्रभु के अंदर वो तुम्हारी कोई भी चाहत होगा वो पूरी होगा, क्योंकि आपने अच्छा चाहत से कोई चीज़ को मांगा है प्रभु से। तो आपने जब वो मांगा है तो क्या होगा? वो आपको दिया जाएगा। हालेलुया। सी एज द वर्ल्ड विंड पासeth इज विकेड नो मोर, बट द राइचियस इज एन एवरलास्टिंग फाउंडेशन। सी जैसे एक आंधी आता है, बोलता कि मूर्ख लोग जो विकेड होते हैं वैसे वो आंधी में चला जाएंगे और हवा में भस्म हो जाएंगे। बट एक धर्मी आदमी इज एन एवरलास्टिंग फाउंडेशन, है ना? जो एक धार्मिकता रखता है प्रभु के अंदर, जो धार्मिकता है, वो जो धार्मिकता रखता है, क्या होता है कि इट्स एन एवरलास्टिंग फाउंडेशन। तुम्हारा वो फाउंडेशन है एवरलास्टिंग का फाउंडेशन, मतलब अनंत काल के लिए। एज अ विनेगर टू द टीथ एंड एज अ स्मोक टू द आइज, सो इज अ स्लगर टू देम दैट सेंडेथ देम। सी एक जैसा विनेगर जो दांत में लगता है और बोलता है स्मोक टू द आइज, सो इज अ स्लगर्ड, मतलब स्लगर्ड का मतलब एक जो एकदम कोई चीज़ में, मतलब प्रभु में विश्वास नहीं करता और वो एकदम ऐसा है। द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्गड डेज, बट द इयर्स ऑफ द विकेड शैल बी शॉर्टेन। जो प्रभु के प्रति भय रखता है उसकी जीवन बहुत बड़ा होगा, उसका लाइफ बड़ा होगा। लेकिन जो विकेड करता है, जो गंदगी करता है, क्या होता है?
उसका जीवन शॉर्ट हो जाता है ना। और एक जो द होप ऑफ द राइचस शैल बी ग्लैडनेस बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द विकेडनेस पेरिश। सी, अगर मैं कोई चीज़ आशा करता हूँ, है ना, और यहाँ पे बोला जाता है द होप ऑफ द राइचस शैल बी ग्लैडनेस, और जब मैं वो आशा रखता हूँ वो क्या होता है, और जब वो आशा रख के मुझे मिलता है वो मेरा खुशी है, हालेलुया, ग्लैडनेस। बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द विकेड शैल पेरिश, है ना। जो एक गंदा आदमी, एक गंदा विकेड मतलब जो गंदगी करता है, क्या वो कोई भी एक्सपेक्टेशन रखता है, वो बोलता है उसके साथ वो चला जाएगा, भस्म होगा। द वे ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रेंथ टू द अपराइट बट डिस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। आमीन। जो प्रभु का रास्ता है क्या है, तुम्हारी ताकत बन जाती है। प्रभु का रास्ते पे चलने वाला वो अपनी ताकत को बनाता है। आमीन। लेकिन क्या होता है, जो विकेड, जो डिस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, जो फिजूल का काम करते, जो प्रभु का काम नहीं करते लेकिन वो अपनी महिमा के लिए करता है, जो भी क्या होगा, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, उसका नाश होगा। आमीन। द राइचस शैल नेवर बी रिमूव्ड, जो धार्मिक है वो कभी भी निकाले नहीं जाएंगे। आमीन। सी, बट द विकेड शैल नॉट इनहैबिट द अर्थ, लेकिन जो बुरा है वो कभी भी इस धरती को पा नहीं पाएगा। सी, द माउथ ऑफ द जस्ट ब्रिंगeth forth विजडम, यानी जो जस्ट है मतलब एकदम साधारण व्यक्ति, जो उसके मुंह से जो बोला जाएगा क्या करेगा, सी, वो हमेशा विजडम कहलाया जाएगा। और जो सिर्फ ऐसी ही बातें क्या करता है, तो फ्रॉवर्ड टंग शैल बी कट ऑफ ना, जो खाली ऐसे बड़बड़ाता है, अपनी ज्ञान देता है और वो प्रभु का उसके पास ज्ञान नहीं है और वो ऐसे बड़बड़ाता, क्या होगा, दिस टंग शैल बी कट ऑफ, यू नो। सी, द लिप्स ऑफ द राइचस नो व्हाट इज एक्सेप्टेबल बट द माउथ ऑफ द विकेड स्पीकeth फॉरवर्डनेस, कि जो धार्मिक है उसका हमेशा मुंह से सबसे अच्छाई बातें आएगी, वो अच्छाई बोलते रहेगा, उसके अंदर से अच्छाई आएगी और वो अच्छाई दिखाएगा, सब कुछ उसका अच्छाई होगा। लेकिन अगर एक बुरा व्यक्ति हो, क्या होगा, उसके मुंह से हमेशा गलत बातें ही आएगी और वो गलत बोलते ही रहेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। तो मैं आप लोग चाहिए तो वापस इस अपनी भाषा में देख सकते हो, प्रोवर्ब्स 10:17-32। प्रोवर्ब्स बोलेगा तो उसमें हमें सब ज्ञान है, यानी कि ज्ञान एक किसने लिखा था, सोलोमन ने। सोलोमन को ये ज्ञान दिया गया था, जो प्रभु का ज्ञान था वो सोलोमन को दिया गया था, क्योंकि उसने ज्ञान मांगा था, प्रभु का ज्ञान, उसने धरती का ज्ञान नहीं मांगा था, बल्कि क्योंकि प्रभु किसको विजडम देता है, जो समझदार है और जो अच्छी चीज़ें सोचता है, वो अच्छे करने को सोचता है, उसके विचार अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छा ही, वो भलाई चाहता है सबकी, यू नो, अपने भाइयों बहनों को वो उठाता है, ज़रूरत में ये करता है, वो सब चीज़ें क्या होता है, हमें अच्छा बनाता है। और प्रोवर्ब्स क्या बोलता है हमें, कि हमें उसमें लाभ है। मैन, सी, लास्ट में पढ़ता, द लिप्स ऑफ द राइचस नो व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल। आमीन। जो धार्मिक लोग है, जो धार्मिकता है जिसके अंदर जो उसकी जो वोटों से क्या हुआ शब्द निकालते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन जो विकेड होता है उसके मुंह से हमेशा सारी बुराई निकलता है। तो आपको चॉइस करना है कि आपको क्या पाना है, यू नो। और हम देखते हैं, इसके पहले मैं कुछ चीज़ें पढ़ूँगा। सी, ब्रदर बनम बोलता है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग दुनिया की कोई भी चीज़ों को नहीं देखते जो दुनिया की है। एंड व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स इन अ पर्सन, जब प्रभु का आत्मा एक अंदर आ जाता है तो क्या होता है, व्हेन द स्पिरिट इट चेंजेस देम, और तुमको बदल जाता है, तुम बदले हुए इंसान हो, तुम वो सेम चीज़ नहीं करते हो, तुम जो सेम चीज़ करते आए हो इतने सालों से और तुम सफल नहीं पाते हो, तो तुमको, अगर तुम प्रभु के है तो क्या होगा,
ब्रदर बनाम बोलता है, वी आर नॉट लुकिंग एट द व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स इनटू अ पर्सन, जब एक वो इंसान के अंदर आता है, इट चेंजेस देम, इट मोटिवेट्स देम, यू नो, आपको द लाइफ दैट्स इन यू मोटिवेट्स यू। तुम्हारा जीवन अंदर तुमको क्या करता है, और भी तुमको अंदर से उठाता है और बोलता है और अच्छाई करो, और अच्छाई करो, और अच्छाई करो, और अच्छाई करो। आमीन। इट्स दैट लाइफ इन यू मोटिवेट्स यू। एंड व्हाट्स द मैटर विद द चर्च टुडे, बोलता है आज क्या प्रॉब्लम है कलीसिया के साथ, इट्स बिकम टू वर्ल्डली, वो दुनिया के जैसा बना है। आमीन। व्हाट वी नीड इज द होली गोस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। आमीन। ब्रदर बनाम बोलता है ये अंदर आत्मा आना जरूरी है। आमीन। आमीन। ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम बोलेगा आज मैं प्रार्थना करेगा, आज भी मैं रात को नो मेरे को मैं कमज़ोर हूँ। अब अपने आप हमेशा हम रोते रहते कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा ये दर्द होता है, मेरा वो दर्द होता है, मेरा ये दर्द होता है। वो क्या है, लेम एक्सक्यूजेस, यू नो, लेम एक्सक्यूजेस। अगर आप प्रभु के अंदर होगा तो क्या होगा, आमीन, आप हमेशा खुश ही रहेंगे। आमीन। आप बोलेंगे मैं हमेशा खुश हूँ। आमीन। तो हमारा शरीर जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा शरीर है। तुम अगर प्रभु के प्रति एकदम क्लोज हो, आमीन, तो आपका शरीर स्ट्रॉन्ग एंड फिट होगा। हालेलुया। आमीन। और अगर आप आत्मा ही नहीं आपके अंदर, तो क्या आपको हमेशा कमज़ोर लोगे, बोले मेरा ये दर्द होता है, मेरा वो होता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। और लेकिन अगर एक अच्छा सच्चाई व्यक्ति जो प्रभु के साथ क्या हुआ है, इसके अंदर बीमारी भी, वो बोलेगा आमीन, हालेलुया, प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है, मैं प्रभु के नाम से सब खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि ये शरीर मुझे दिया है। हालेलुया। उसके अंदर मगन होने के लिए। सी, and the life that in you motivates you. And what's the matter with the church today? It's become too worldly. What we need is the Holy Spirit in it. See, in the heart, it will take the new birth to do that. Change that person, making him or a new creature. In the darkest of Africa, when I see women standing there, मैं जब अफ्रीका जाता हूँ और जब मैं वहाँ पे even they standing in the stark naked and they come into the world, when the Holy Ghost came on them, they hide their nakedness. See, बोलता मैं जब मैं अफ्रीका जाता हूँ सब ऑलमोस्ट नंगे पुंगे रहते हैं, उनको नहीं मालूम है क्योंकि वो लोग वैसे ही रहते। लेकिन जैसा ही वचन आता उनके पास क्या होते, उन लोग सही तरह से कपड़े पहनते, उन लोग अपने आप को ढांपते हैं। और एक सच्चा व्यक्ति अपने आप को हमेशा सही रखेगा। आमीन। वो दुनिया की जैसे नहीं रखेगा, है ना, उसके लिए वो स्टाइल नहीं है, वो उसके लिए कुछ नहीं है ना। वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रॉपरली क्लोथ करेगा, अपने आप को प्रॉपरली सब कुछ रखेगा। आमीन। वो दुनिया के जैसा नहीं रहेगा, वो प्रभु को जैसा इच्छा है वैसा रहेगा। सी, and they came into the world, and when the Holy Ghost came to them to hide them, they folded their arms and walked away till they could find clothes. जब तक वो कपड़े नहीं ढूंढते, and then they called us the civilization, and each year we are taking off more clothes and then claim to have the Holy Spirit. The Holy Spirit won't work on the person in another. बोलता है जब एक स्त्री अपने आप को बराबर ढांप नहीं सकती, ना कपड़े पहन सकती, और उसको लगता है कि प्रभु उसके प्रभु पवित्र आत्मा आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब एक स्त्री अपने आप को प्रॉपरली कपड़ा पहनती, वस्त्र पहनती और वो जाती है, तो क्या होता है, उसको पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है। बहुत लोगों को लगता है कि फैशन ऑफ द वर्ल्ड, जब मैं देखता था, जब मैं कैथलिक में था, तो जब मैं मुझे डिस्टर्ब था, और जब मैं कैथलिक चर्च में जाता था और मैं देखता था कि कोई भी कैसे भी वस्त्र पहन के आता है, और उनको एक कंपटीशन था कि मैं जितना रिवीलिंग कपड़ा पहनूंगी उतना मैं अच्छा दिखूंगी। बट वो नहीं समझते थे कि वो चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि चर्च में जाना आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो। अगर लेकिन जब आप दुनिया में जाते हो तो हो सकता है ठीक है, बट आप परमेश्वर के घर में जा रहे हो और आप ऐसे वस्त्र पहन रहे हो, और फिर आपको लगता है कि प्रभु आपसे प्रसन्न होगा, कभी नहीं होगा। आमीन। तो इसलिए ब्रदर बनाम बोलता सी, और when a woman or a man is born, or he becomes a new creature, as they are out, they are dead to him, for he is dead and his life is hid in God.
उसका जीवन क्या है? परमेश्वर के अंदर छिपा है। इस लाइफ इज हिड इन जीसस क्राइस्ट, सी, एंड सील्ड बाय द होली गोस्ट, आमीन। उसको मोहर लगाया गया पवित्र आत्मा से, सी विद द होली गोस्ट। व्हाट वी नीड टुडे इज अ रिवाइवल, इज अ शेकिंग एन ओल्ड Pentecostal revival. We'll be a lot better off with the tambourine down the corner, beating the tambourines, and then living in the big mall with the Spirit of God being grieved away. The devil comes to rob and take away that all he knows to do. You know, see? वो बोलता है कि बड़े चर्चेस लोग ने बनाए और वो वहाँ पे ऐसे गीत गाते और उनको लगता है कि उस चर्च को मॉर्ग बोलता है। जहाँ मॉर्ग बोलेगा तो जहाँ मुर्दे को रखता है ना, वो ऐसे बताता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ब्रदर ब्रैनम जानता था कि ये जो चर्चेज उन लोग बांध रहे, वो लोग ऐसे मॉडर्न चर्चेज बांध रहे और वो कपड़े पहनते स्टाइल में और गाना गाते स्टाइल में, और वो सारे चीज़ को ऐसे प्रभु का घर को उन्होंने क्या बनाया? प्रभु का घर को उन्होंने एक ऐसा बनाया जैसे कि वो स्टाइलिश प्लेस, इसी। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड बीइंग ग्रीव्ड, होता प्रभु का आत्मा दुखित होता है उस चीज़ से। और उस समय जब दुखित होता है क्या होता है? बोलता शैतान आता है और सब कुछ तुम्हारा अपने तुमको कब्जा कर लेता है ना, सी। तो हमको कैसे रहना है, हमको कैसे जीना है, हमको कैसे वस्त्र पहनना है और हमको कैसे चलना है, ये हमको खुद को जानना है। हमको किसी ने नहीं बताना पड़ता कि हमें क्या करना पड़ता नहीं। क्योंकि एक बार एक बहन ने ब्रदर ब्रैनम को पूछा कि भाई ब्रैनम, मैं ये पहनती हूँ तो ये सही है क्या? तो ब्रदर ब्रैनम क्या बोला? उसको जवाब दिया, सिस्टर आप परमेश्वर की हो, आपको खुद को जानना है कि आपको क्या पहनना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। मुझे आप पूछ रही हो, पर आपको खुद को जानना चाहिए। जब हम दूसरे को पूछ के कपड़े पहनते तो आप सोचो, आपको खुद को जानना है कि आपका परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है आपसे, आप कैसे चलते, कैसे फिरते, कैसे बातें करते, कैसे आपको प्रभु को प्रसन्न करना होता है। अगर आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हो तो आप कैसे चाहते हो कि प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हो? तो फिर कैसे चाहते हो कि प्रभु आपको जो आपको देना है? प्रभु आपको कभी नहीं दे पाएगा कि जब तक आप प्रभु को प्रसन्न करते हो। आपका पहला जीवन का मकसद ये है कि आप प्रभु को प्रसन्न करो। आमीन। आप कोई ब्रदर को प्रसन्न, आप बहन को प्रसन्न नहीं कर सकते हो, और आप कोई चर्च को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आपको किसको प्रसन्न करना है? आपको अपना परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये आपका पहला मकसद है। फर्स्ट वॉक विद गॉड, फर्स्ट सीक द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। लिखा गया है, एडेड मतलब आपके साथ जोड़ा जाएगा। आमीन। कोई चीज़ में कमज़ोरी है, आपको जोड़ा जाएगा। हर चीज़ आपसे जोड़ा जाएगा। आप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे परमेश्वर में। जितना आप प्रभु को प्रसन्न करते, जितना आप प्रभु के साथ चलते हो, उतना आप प्रभु के ऊपर आप प्रभु को प्रसन्न करते हो। आमीन। सी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू स्पिरिट्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड एंड विच स्पिरिट यू आर वॉकिंग विद। If you are walking with the Spirit of God, the Spirit of God will lead you what you have to do. आपको क्या करना है, नहीं करना है, वो मैं नहीं समझा सकता, ना ब्रदर मनोज समझा सकता है। आपको खुद को समझना है कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे रहना है, आपको प्रभु में कैसे बढ़ना है, और आपको प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहते हो, हालेलुया, तो वो ही आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत सी, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमीन। मेरी ताकत कौन है? प्रभु का आनंद। तो प्रभु का जॉय पाना ही सबसे बड़ा मेरा मकसद है, नंबर 1 मकसद, कि मेरी आनंद जो है, मेरा जॉय मुझे कभी नहीं खोना है। कोई भी रीज़न की वजह से मुझे नहीं खोना है। जब मैं मेरा जॉय को खो रहा है तो कहीं ना कहीं हम आत्मा को नहीं मांग रहे, या आत्मा हमसे प्रसन्न नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु आपसे बोल रहा है ना, कि आपको कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं हो रहा है, तो यह ना कहीं हमने प्रभु को दुखाया। और जब हम प्रभु को दुखाते हैं तो क्या होता है? प्रभु हमसे दूर हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ओ ये मेरा बेटा था, मैंने उसको चुना है, प्रीडेस्टिनेटेड सीड है,
और वो मेरे को उसने अगर पाप किया तो भी मैं माफ़ करूँ, नहीं। अगर मैंने पाप किया तो मुझे उस पाप को निकाल के प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। उस चीज़ को मुझे सारे चीज़ को क्लियर करके प्रभु के साथ चलना है। मैं गॉड को कभी भी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो गॉड है और हम इंसान हैं। अगर वो मेरा क्रिएटर है, उसने मुझे रचा है, तो मुझे उसके अधीन चलना है, मुझे उसके साथ चलना है, मुझे उसकी हर रजामंदी होना चाहिए। मेरे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ उसका रजामंदी होना चाहिए। अगर उसका रजामंदी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम प्रभु को दुखाते, और जब हम दुखाते तो हमारे जीवन में प्रभु वो चीज़ नहीं देगा आमीन जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं, हम गीत भी गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, और हम हमेशा क्या होते, दुखित रहते। किस लिए दुखित रहते? बस छोटी छोटी चीज़ों में हम दुखी रहते। ये मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु के साथ नहीं चलते। तो अगर आप प्रभु के साथ चलोगे तो ज़रूर होगा। है मैन सी। तो ब्रदर बनाम बोलता है सैमसन के पास वो ऐसे सामर्थ दिया गया था उसके अंदर। तो नाज़रेत था, उसके वो नाज़रेत जो होता है उसको 7 लॉक्स के बाल बनाना पड़ते हैं। और ब्रदर बनाम बोलता कोई वो ऐसा ताकतवर इंसान नहीं था जो एकदम जायंट जैसे दिखे और वो लोगों को मार रहा है और वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो बड़ा इंसान है। नहीं, ब्रदर बनाम बोलता वो सादा टाइनी इंसान था। इसको अगर उसको प्रभु का जलवा दिखाना है तो उसको बड़ा बनाने की नहीं ज़रूरत था। उसको एक स्ट्रॉन्ग ऐसे आदमी था, जब उसको वो बाल बढ़ते थे तो उसके अंदर वो ताकत आती थी। और उसको वो ताकत किसको दिखाना था? वो ताकत दिखाना था वो फिलिस्टीन्स को। और फिलिस्टीन्स कितनी बार कोशिश की, उन्होंने क्या किया? उनको मालूम था कि वो लोग सैमसन को हरा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया? एक चाल बनाया। उनको पता था कि सैमसन के सामने खूबसूरत डिलाइला को लाया, और डिलाइला ने इसको बहुत बार बरमाया। 4 बार वो बरमाया नहीं गया था, लेकिन हर टाइम उसको फिर लास्ट में क्या करता है? डिलाइला उसको फंसाता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। बोलता कि अगर आप प्यार करते तो मुझे आपकी ताकत, आपकी सच्चाई बताते थे। तो फिर क्या होता है? वहाँ पे चूक किया, वहाँ पे सबसे बड़ा चूक किया सैमसन ने। उसका जो प्रभु ने उसको जो दिया था, तो उसने क्या किया? उन गिफ्ट को, और उन डिलाइला को बहुत पैसे मिलने वाले थे, और वहाँ के लोगों को भी पैसे मिलने वाले थे, सिल्वर कॉइन्स मिलने वाले थे। और जैसे हम देखते हैं यीशु को फंसाया गया था जूडस ने, वैसे क्या किया सैमसन ने। लेकिन सैमसन एक अलग था और जूडस अलग था। सैमसन ने क्या किया? उसने वो चीज़ को बता दिया, और बताने से क्या हो गया? वो कमज़ोर पड़ गया। डिलाइला को उसका वो सब कुछ पता चला। उसने फिलिस्तीन ने उसको बांधा, उसको अंधा कर दिया और उसको छोड़ दिया। फिर सैमसन को लगा कि मैं कहीं ना कहीं प्रभु को मैंने चूक किया और मैंने सबसे बड़ी गलती की, और मैं वापस एक बार उसने जस्ट 1 more टाइम लॉर्ड बोला, उसने पुकारा, जस्ट 1 more लाइट बोला, एक बार प्रभु मुझे वो ताकत मुझे लौटा दे। मेरा जो प्राण है मैं संपूर्ण रीति से आपको दूंगा। मैं जितने भी फिलिस्तीन जाए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। क्या किया उसने? एक बार मांगा, बोला जस्ट 1 more टाइम, डोंट पास मी बाय। और प्रभु ने उसको वो ताकत दिया वापस आने में। क्या किया उसने? सारे फिलिस्तीन्स को, उसके सारे दुश्मनों को उसने हरा दिया। लेकिन हमारे समय में हमें वैसे नहीं करना है। हमारे दुश्मन को अगर मारना है तो हमें कैसे करना है? हम प्रार्थना में, हमको प्रभु यीशु ने बोला हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना, हमें कोई लड़ाई नहीं करना है, बट हमको क्या करना है? आत्मा में बने रहना है। क्योंकि हमारी ये दिनों की समय, ये समय जो है वो हम आत्मा में लड़ाई कर रहे हैं। हमारा कौन दुश्मन है? वो शैतान है। हम आत्मिक में उससे लड़ाई करते, दिन रात प्रतिदिन क्या होता है? हम आत्मा से उससे लड़ते हैं। वो हमारे जीवन में रोज़ तकलीफ़ें लाने की कोशिश करता है। और ये हमारे परीक्षा का समय है, क्योंकि हमें जब जाना है
तो हमारे ऊपर परीक्षा और भी कठिनाई से आएगी। आप सोचेगी कि सुबह में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दोपहर को दूसरा प्रॉब्लम आएगा, फिर आप देखो कि दूसरा प्रॉब्लम आया, एक से निकले अब तीसरा प्रॉब्लम आएगा। ये आपके जीवन में आते रहेगा। क्यों? ये प्रभु का समय है और प्रभु हमारी परीक्षा लेता है, और हमको परीक्षा में अगर सफल पाना है या सफलता पाना है तो हमें क्या करना है? दिन रात प्रतिदिन हमें प्रभु के साथ बने रहना है। अगर हम बने नहीं रहते तो क्या होता है? हम लोग वो समय में गिर जाते हैं, और वो समय में शैतान हम पर सब डाउट्स लाता है, संदेह लाता है, ये लाता है, वो लाता है, ये सब थॉट्स, हमारा पूरा माइंड को थॉट से भर देता है। और क्या होता है? लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग रह गए तो क्या होगा? कभी भी हम पर कोई भी चीज़ ला नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जयवन से भी बढ़कर हैं। हम लोग कोई साधारण लोग नहीं, हम लोग कोई साधारण विश्वासी भी नहीं, हम लोग प्रभु की दुल्हन वाले हैं। और दुल्हन क्या करेगी? उसकी ही आवाज़ सुनेगी, उसकी ही पीछे जाते रहेगी। आमीन। तो प्रभु आप लोग को आशीष दे, और मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, और प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हम गाना गाएंगे, तू ही दुल्हन है। आमीन। किधर पे है? 165 और मैं फोटो लेके डालता हूँ। तू ही दुल्हन है, ये मैं सबको बताऊंगा। तू ही दुल्हन है, तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे ही प्रेम करूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुमसे ही प्रेम करूंगा। तेरे आँखों से अब मैं देखूंगा, तेरे होठों से अब मैं बोलूंगा। मेरी सामर्थ को मैं तुम में उंडेलूंगा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, अब तुमको जिलाऊंगा। झुंड डरना नहीं अब तू, तेरे बीच में हूँ। जो काम मुझ में हुए अब मैं तुम में करूँ। जो भी मेरा है मैं तुमको ही दूंगा, पास हमेशा मेरे तुमको मैं रखूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी झुंड है मेरी, पर तुम
तुमसे ही प्रेम करूँगा। जीवन का है समय, अब मैं आया हूँ, मैं और हार नहीं, पर प्रेम को लाया हूँ। सिर्फ तू शब्द को कहना, पूरा मैं करूँगा। ये है वादा मेरा, उसको न भूलूंगा। तू ही दुल्हन है, ये सबको बताऊंगा। छोटी जुन है मेरी, पर तुमसे ही प्रेम करूँगा, पर तुमसे ही प्रेम करूँगा, पर तुमसे ही प्रेम करूँगा। आमेन। ये वायदा है मैन प्रभु यीशु का। आइए हम प्रार्थना